Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hope you all are fine and safe in your home. Dear students, as you know, today our topic is Lalaji. Class 7th, subject English, पेज नंबर 109। बच्चों, आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लाला जी। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और अपने सामने रखें। उसके बाद हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। I could not spare much time to nurse the thin man, for I already had 3 cholera patients on my hands. From my servants I could expect no help, for they were of a different cause to the sufferer, and further there was no justification for exposing them to the risk of infection. However, this did not matter, provided I could instill sufficient confidence into the man that my treatment was going to make him well. To this end, I made it very clear to him that I had not brought him into my compound to die, and to give me the trouble of cremating him, but to make him well, and that it was only with his cooperation that this could be affected. उसके बाद क्या होता है बच्चों? I could not spare much time to nurse the thin man, for I already had 3 cholera patients on my hands. ये क्या कहता है बच्चों कि मैं उस पतले से यानी उस कमज़ोर से आदमी की देखभाल करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं निकाल सकता था, क्योंकि मेरे पास देखभाल करने के लिए पहले ही से कॉलरा के 3 मरीज थे। फ्रॉम माई पेरेंट्स, अपने नौकरों से मैं आई कुड एक्सपेक्ट नो हेल्प, फॉर दे वेयर ऑफ ए डिफरेंट कॉज टू द सफरर, एंड फर्दर देर वॉज नो जस्टिफिकेशन फॉर एक्सपोजिंग दिम टू द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ये क्या कहता है बच्चों कि मैं अपने नौकरों में से किसी से भी उम्मीद नहीं कर सकता था, किसी से भी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बीमारी में मुब्तला आदमी की ज़ात से मुख्तलिफ ज़ात के थे, क्योंकि वो बीमारी में मुब्तला जो आदमी था उसकी ज़ात से वो मुख्तलिफ ज़ात के थे, और इसके अलावा इन्हें छूत के खतरे में डालने की कोई वाजिब वजह नहीं बनती थी। इन्हें छूत के खतरे में डालने की कोई वाजिब वजह नहीं बनती थी। However, this did not matter, provided I could instant sufficient confidence into the man that my treatment was going to make him well. तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बशर्ते कि मैं उस आदमी में ये भरोसा दिला पाता कि मेरे इलाज से वो ठीक हो जाएगा, मेरे इलाज से वो ठीक हो जाएगा। To this end, I made it very clear to him that I had not brought him into my compound to die and to give me the trouble of cremating him, but to make him well. इस मकसद से मैंने उससे ये बात बिल्कुल साफ कर दी, इस मकसद से मैंने उससे ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि मैं उसे अपने आंगन में मरने के लिए नहीं लाया था, और खुद को उसके आखिरी रसूम निपटाने की तकलीफ देने के लिए, and to give me the trouble of cremating him, but to make him well, and that it was only with this cooperation that this could be affected. बल्कि उसे तंदुरुस्त करने के लिए, और ये बात कि सिर्फ उसके तावन से ही ऐसा किया जा सकता था।
That first night I feared that in spite of our joint efforts he would die. But towards morning he relied, and from then on his condition continued to improve, and all that remained to be done was to build up his strength, which cholera drains out of the human body more quickly than any other disease. At the end of a week, he was able to give me his story. बच्चों, that first night I feared that in spite of our joint efforts he would die. But towards morning he relied, and from then on his conditions continued to improve, and all that remained to be done was to build up his strength. पहली रात मुझे ये डर था कि हमारी कोशिशों के बावजूद इसकी मौत हो जाएगी। ये क्या कहता है बच्चों कि पहली रात मुझे ये डर लग गया था कि हमारी कोशिशों के बावजूद इसकी मौत हो जाएगी। लेकिन सुबह होने के करीब वो ठीक होने लगा और उसकी हालत में सुधार आना जारी रहा, और सिर्फ जो करना बाकी रहता था वो ये था कि उसकी ताकत को और बढ़ाया जाए। ये क्या कहता है बच्चों, सिर्फ यही बाकी रह गया था कि उसकी ताकत को और बढ़ाया जाए। Which cholera drains out of the human body more quickly than other disease. At the end of a week, he was able to give me his story. जो कि हीज़ा किसी भी दूसरी बीमारी की निस्बत आदमी के बदन में से ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है। हीज़ा जो है बच्चों वो किसी भी दूसरी बीमारी की निस्बत आदमी के बदन से जल्दी ख़त्म हो जाता है। हीज़ा ख़त्म होने पर वो मुझे अपनी कहानी सुनाने के काबिल हो गया। हीज़ा ख़त्म होने के बाद वो मुझे अपनी कहानी सुनाने के काबिल हो गया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको पढ़ाया अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ।